Hello my dear students, good morning to all. Today we will study multiple choice question. Here options were given A, B, C, D. Three options were incorrect and one option is correct among that. For example, first one a line segment. Line segment कैसा होता है? For making line segment at least we need 2 points. For example, this and this. This is X. I took here X point and here Y. अब लाइन सेगमेंट कैसी होती है? ऐसी ये पॉइंट देखिए, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। ये एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यानी a line segment has two end points or 2 points. Here option given 1 end point, no end point, 2 end point, none of this. तो कितने end point होते हैं इसमें line segment में? 2. So option number C. So put right for option number 1 C. Understood? Line segment में 2 end point होते हैं. Next, which of the following represent a line? Side of square. Square में क्या होता है? Line segment होते हैं. ठीक है. एज ऑफ क्यूब. क्यूब में भी एज मतलब साइड होते हैं. ठीक है. यहाँ पर भी डायमीटर ऑफ सर्कल, उसमें भी लाइन सेगमेंट होता है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर में क्या होता है? लाइन सेगमेंट. क्यूब में भी लाइन सेगमेंट होता है, और डायमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल में जो डायमीटर होता है उसको भी कहलाते हैं क्या? लाइन सेगमेंट. एक्सिस ऑफ अर्थ में क्या होता है? लाइन. सो यहाँ पर विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी. एक्सिस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट ए लाइन. नाउ सी which of the following letters here letter does not have the vertical line of symmetry. Vertical मतलब खड़े में ऐसी लाइन. which of the following letter does not have vertical line of symmetry. अब लेटर एम में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, आती है. ई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? नहीं आ सकती. लेटर वी में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आता है, यानी एम, एच और वी में ये 3 लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉ. बट द लेटर ई डज नॉट हैव vertical line of symmetry but it has horizontal line of symmetry. अब यहाँ पूछा है which of the following letters does not have vertical line of symmetry. So कौन सा लेटर है? E में. E में vertical line of symmetry नहीं होती है. So put right for option number C. Now fourth, which of the following letter have both horizontal and vertical line of symmetry. horizontal भी और vertical line, आड़े में भी और खड़े में भी. कौन से लेटर है? X. X में क्या निकाल सकते हैं हम? vertical line of symmetry as well as horizontal line of symmetry. ठीक है. लेटर E में एक ही निकलता है, horizontal. लेटर M में भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, vertical. और लेटर K में भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, horizontal. तो ऐसा कौन सा लेटर है? यहाँ 2 वर्टिकल भी निकल सकते हैं और horizontal भी लाइन ऑफ सिमेट्री. तो कौन सा लेटर है? X. X में horizontal as well as vertical line of symmetry can be drawn. Now fifth, which of the following letter does not have any line of symmetry? Does not have any line of what? Symmetry. लेटर एम में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलता है, लेटर एस में मिलेगा क्या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं. हॉरिजॉन्टल भी नहीं मिलता. लेटर के में हॉरिजॉन्टल, लेटर एच में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में मिल सकता है. तो यहाँ कौन सा लेटर है? 1, 2, 3, 4 लेटर में से ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? सो लेटर यस. सो अंडरस्टूड. So note down this multiple choice question. Now true or false. If statement is correct, then we have to write true, otherwise false. Here what it is given? If the arms of an angle on the paper are decreased, the angle decreases. If the arm, angle में कितने arms होते हैं? For example, this is rough diagram. This is an angle. ठीक है, ये angle हो गया. Suppose this is an angle. A, B, and this one is C. And suppose this measure of angle is 20 degree. Suppose, अब exact नहीं है. Suppose measure of angle ABC equal to 20 degree. If the arms are, ये arms है, ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल ABC. The vertex of the angle ABC is B, and arms or rays or sides of the angle is BA and BC. The common vertex is B. Okay. Now here given if the arms of an angle on the paper are decreased. Decrease मतलब कम. अगर उसके आर्म कम करेंगे, जैसा अब यहाँ इतना किया, ठीक है, कम हो गए. पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब कम हो गए. अगर डिक्रीज किए तो क्या उसकी एंगल की वैल्यू कम होती है क्या? द एंगल डिक्रीजेस. एंगल तो अपनी जगह पर रहेंगे, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी. पहले इतना भी किए तो मेजर करने के बाद उसका 20 आया था, उसको कम करने के बाद भी उसका कितना आ रहा है? एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती. इफ द arms of an angle on the paper are decreased, the angle decrease होते क्या? नहीं, एंगल तो डिक्रीज नहीं होता, 20 का 20 रहेगा. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है?
फॉल्स। एंगल आर्म को कम किए तो भी एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती। इफ द आर्म ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम करना, तो एंगल डिक्रीज नहीं होता है, वहां एंगल उतना ही रहेगा। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट टू एंगल्स कैन हैव एट मैक्सिमम ओनली 4 पॉइंट इन कॉमन। टू एंगल, जैसा अब ये एक एंगल हुआ और ये दूसरा एंगल हुआ, ये है ए बी और ये वाला लिया मैंने सी, और दूसरा एंगल लिया है पी क्यू और आर सपोज, ठीक है। एक पी क्यू आर लिया मैंने, दो एंगल हो गए, एंगल एबीसी एंड एंगल पी क्यू आर। एंगल एबीसी का वर्टेक्स बी, एंगल पी क्यू आर का वर्टेक्स क्यू। टू एंगल्स हैव एट मैक्सिमम ओनली 4 पॉइंट इन कॉमन। क्या 4 ही पॉइंट होते कि यहाँ पर? ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं एंगल पे, बहुत सारे, यानी पास पास में हम बहुत सारे यहाँ पर एंगल पर पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया है टू एंगल्स हैव एट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ओनली 4 पॉइंट इन कॉमन। बहुत सारे हम पॉइंट ले सकते हैं एक एंगल में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सिर्फ 4 ही नहीं होते वहां, यानी 4 से ज्यादा भी रह सकते। टू एंगल्स हैव एट मैक्सिमम ओनली 4 पॉइंट इन कॉमन। 4 से ज्यादा भी रहते हैं पॉइंट्स, उसका मतलब, इसलिए यहाँ 4 दिया है, इसलिए यहाँ फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। बहुत सारे पॉइंट होते हैं एंगल पे, पास पास में अगर लिए तो हमने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज। अब इंक्रीज कर रहे, सपोज अभी यहाँ पर ये एंगल है, वो वाला एग्जांपल दिया मैंने एबीसी का, फिर से मैं एबीसी ले रहा यहाँ पर। अब ये हुआ ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर लिया मैंने 20 डिग्री और 10 डिग्री या फिर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लिया। सपोज मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू 30 डिग्री। इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज देयर इज नो चेंज इन द एंगल। देखो अभी इंक्रीज, अभी बड़ा, अभी ये है, अब ये एंगल को मैं बढ़ा रहा, आर्म्स को बढ़ा रहा, ये एंगल मेजर करने के बाद 30 आया, और बढ़ाने के बाद भी अगर मेजर करेंगे तो क्या आता है? उतना ही रहेगा, एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 30 आएगी। इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब आर्म को बढ़ाना है, देयर इज नो चेंज इन द एंगल। फिर एंगल चेंज होता क्या? नहीं, देयर इज नो चेंज इन द एंगल, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। ये बराबर है। अगर आर्म को डिक्रीज भी किए तो भी एंगल की वैल्यू वही रहती है, और इंक्रीज भी किए तो भी एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहेगी। समझ में आया? कम करो या ज्यादा करो, एंगल चेंज नहीं होता है उसमें। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, मेनी लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। मेनी लाइन, जैसे अभी दो यहाँ पर पॉइंट दिए, यहाँ एक्स है और यहाँ पर वाई, तो कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? ओनली इफ 2 पॉइंट्स वेर गिवन देन ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। लेकिन मेनी लाइन कैन पास थ्रू, अब यहाँ से कितने लाइन पास हो सकते हैं? यहाँ पर लाइन भी एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर 2 पॉइंट देखे रहे तो ऐसी एक ही लाइन मिलेंगी हमें, ठीक है। लाइन में दोनों साइड एरो होता है, लेकिन यहाँ दिया है मेनी लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। कहां से ज्यादा आते हैं पॉइंट? नहीं आते, यानी लाइन हम और कहां से ड्रॉ कर सकते? इसका मतलब अगर 2 पॉइंट देके रहा तो एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ दिया है मेनी लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। एक ही लाइन मिलती है अगर 2 पॉइंट देके रहा तो। समझ में आया? लेकिन वहां पर दिया क्वेश्चन मेनी लाइन, सो दैट्स व्हाई फॉल्स। देयर इज नो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, जैसा अभी बहुत सारे लेटर है, उसमें कुछ लेटर्स है, जैसा यस लेटर लिया मैंने, यस। अब इंग्लिश अल्फाबेट का है, तो यहाँ पर क्या मिलता है क्या? हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो 2 इक्वल लाइन पार्ट होते क्या? मुश्किल है। और वर्टिकल भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो नहीं होता। देयर इज नो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ दिया है नो लेटर तो है यस, और यस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आता है उसमें, ना हॉरिजेंटल ना वर्टिकल, बट देयर इज नो लेटर है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। देयर आर सम लेटर विच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन यहाँ दिया है देयर इज नो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक भी लेटर कहते हैं ऐसा नहीं, जैसा एग्जाम्पल यस में तो नहीं आता, ना हॉरिजेंटल ना वर्टिकल, लेकिन वो लेटर हुआ ना इंग्लिश अल्फाबेट का, लेकिन यहाँ क्या दिया है? देयर इज नो लेटर ऑफ इंग्लिश, नो है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स।
So understood this true and false. So note down this true and false. C. Fill in the blanks. The three edges of a cube meet at a dash. The three edges का मतलब साइड of a cube meet at a, जब वो थ्री एजेस मीट होते हैं क्यूब में तो उसको क्या कहते हैं? एट ए वर्टेक्स. द थ्री एजेस ऑफ ए क्यूब मीट एट ए, इट इज कॉल्ड व्हाट? वर्टेक्स. ओके. नाउ सेकंड, द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट ए डैश. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ ए लाइन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लाइन. ओके. नाउ थर्ड, द नंबर ऑफ डिजिट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. द नंबर ऑफ डिजिट, जैसा अभी ये 0, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डिजिट नंबर लिखा मैंने. द नंबर ऑफ डिजिट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अब यहाँ पर तो लाइन ऑफ सिमेट्री आता है. 1 में नहीं आता, 2 में भी नहीं, 3 में भी आता है. अब यहाँ पर द नंबर ऑफ डिजिट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं मिलता है. 1 में, 2 में भी नहीं मिलता, 3 में मिलता है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल. 4 में भी नहीं मिलता, 5 में भी नहीं मिलेगा आपको, 6 में भी नहीं मिलता है, 7 में भी नहीं, 8 में मिलेगा, 9 में नहीं मिलते. टोटल कितने हो गए फिर? 1 2 3 4 5 6 7. द नंबर ऑफ डिजिट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज 7. 7 डिजिट में देर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल. समझ में आया? इसलिए द नंबर ऑफ डिजिट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज 7. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन, द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. कितने हैं वहां? द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. टोटल वहां पर पेज नंबर आपका दिया है, यहाँ पर पेज नंबर, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर लुक एट, आई विल टेल यू. 322. कौन कौन से लेटर है उसमें जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है? जैसा फॉर एग्जाम्पल यप, जी, जे, ठीक है, यल, एन पी, यल, एन पी, क्यू आर एस, क्यू आर एस एंड जेड. ये जो लेटर है इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है, नहीं मिलता आपको. यप में भी नहीं मिलेगा, जी में भी नहीं, जी, जे में भी नहीं मिलता है, यल में भी मुश्किल है, एन में भी नहीं मिलता, पी में नॉट, क्यू आल्सो नॉट, आर आल्सो नॉट, यस आल्सो नॉट एंड जेड आल्सो नॉट. अब टोटल लेटर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the number of capital letter of the English alphabet with no line of symmetry is total 10 letter. 10 letter ऐसे है इंग्लिश अल्फाबेट में. वहां पे हमें ना वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और ना ही हॉरिजॉन्टल. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, द डिजिट विथ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. डिजिट यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9. 1 डिजिट नंबर लिखे 0 से, नेचुरल नंबर. ओके, मीन्स 0 भी आया तो होल नंबर. 0 से 9 तक लिखा मैंने. द डिजिट विथ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे कौन से 2 डिजिट जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकते हैं? जैसा अब ये 0 हो गया, इसमें हम हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज वर्टिकल. ठीक है, यहाँ पर एक डिजिट हुआ. और ऐसा कौन सा डिजिट है? जैसा अब यहाँ 8 है, 8 में हम क्या निकाल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन भी. ठीक है, वर्टिकल लाइन भी, यानी 2 डिजिट ऐसे है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन निकल सकते. बाकी इसमें तो नहीं मिलते. इसमें यहाँ 1 में तो नहीं मिलेगा आपको एक भी लाइन, 2 में भी नहीं, 3 में हॉरिजॉन्टल मिलता है, 4 में नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 9 में भी नहीं मिलते. यानी द डिजिट विथ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इज 0 एंड 8. 0 एंड 8. इसमें ही 2 डिजिट में हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. द डिजिट विथ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर 0 एंड 8. Understood? So note down this one. Now last question look at. Take the correct mirror image. जैसे अभी कोई लेटर लिखे या फिर नंबर लिखेंगे और उसको हम मिरर के सामने ले गए तो आपको उल्टा दिखेंगे. जैसे आप फर्स्ट वन JUG यानी जग, जे का उल्टा आएगा, यू का भी लेटर उल्टा आपको दिखेगा, JUG जग. ठीक है, और जी का भी उल्टा दिखेंगे. लेकिन पहले आएगा जी का उल्टा आएगा, फिर यू का उल्टा, फिर जे का उल्टा. अब देखो यहाँ जे का उल्टा, अभी जी का उल्टा है, ठीक है, यू का भी ठीक है. अब जे कैसा है? जे का भी उल्टा आएगा, जे का उल्टा इस ढंग से आएगा, जी का उल्टा ये आया, ठीक है, यू का ये आएगा आपको मिलेगा, और जे का उल्टा ये मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन, इसमें से एबीसी में से एक ऑप्शन इज करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है.
अब देखो जे का उल्टा आया, ठीक है, यू का भी उल्टा, लेकिन जी का उल्टा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं उल्टा, जी का जी है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। जी का जी आया तो ये मिरर इमेज नहीं होगा। अब देखो जे, यहाँ पर भी जे आया, उल्टा आया कि नहीं आया, यू तो बीच में कैसा भी देखेंगे तो ऐसा आएगा आपको, जी का उल्टा आया, लेकिन जे का उल्टा नहीं आया यहाँ पर, या तीनों लेटर उल्टे आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पहले में जी का उल्टा ये आया, यू का भी उल्टा ये लेटर आया है, और जे का उल्टा ये आया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपको उल्टा दिखेगा वाला लेटर, अगर जे यू जी को आप अगर लिख के पेपर में मिरर में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। नाउ 236 236, 2 का उल्टा, ठीक है, 2 आया है, 3 का उल्टा ये भी आया, ठीक है, बराबर। 6 का उल्टा आना चाहिए था, लेकिन 6 ही आया, तो ये नहीं है। अब देखो यहाँ पर 236 का उल्टा आपको क्या मिलेगा, 6 आया, ठीक है, 3 का उल्टा भी आया, 2 का उल्टा ये भी आया, तो यानी यहाँ पर बी है। अब यहाँ 2 का उल्टा, यानी ये पूरा 236 का उल्टा आपको दिखेगा 632 उसमें मिरर इमेज में, तो यहाँ पर इस ढंग से मिलेगा 632। अभी देखो यहाँ 2 का उल्टा, ठीक है, 3 का भी उल्टा से, ठीक है, लेकिन 6 का ये है, लेकिन आपको इस ढंग से मिलेगा वहां पर, ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सो पुट राइट फॉर बी। नाउ नेक्स्ट थर्ड, स्माइली फेस है, एक ही ईयर दिया है इधर, और एक आई को डॉट किया है, यानी यहाँ पर डॉट करके, ठीक है। अब ये देखो इसका ये वाला ईयर इधर आना चाहिए, ये आई इधर आना चाहिए, ये भी बराबर है, हाँ, और ये वाली आई ये साइड में गई, तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर सेकंड में भी ये ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा डॉटेड दिया है, ये लास्ट बाउंड्री डॉटेड दिया है, तो ये नहीं है। यहाँ डॉटेड है कि नहीं है, लेकिन यहाँ डॉटेड दिया है, इसलिए ये नहीं है। अब ये वाला ऑप्शन देखो, चेक करो, इसमें से कौन सा आएगा आपका, ये वाला ही ऑप्शन इधर दिया है, तो सेम टू सेम नहीं हो सकता, मिरर इमेज में चेंज हो जाता है। ये ईयर इधर आएगा, और ये वाली आई यहाँ पे आएंगी, और ये आई वो साइड में जाएंगी स्माइल पे। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ लास्ट वन, अब यहाँ लिखा है हाउ मेनी साइड्स आर देयर, पहले चेक करो साइड कितने हैं, यहाँ से काउंट किए 1 2 3, लाइन सेगमेंट, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 8 लिख के रखा मैं यहाँ पर। अब देखो बी का उल्टा बी आया, ठीक है, हाँ, और 7 का उल्टा उल्टा आना चाहिए, लेकिन 7 का 7 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट। तो अभी बी वाला चेक करो, अब देखो यहाँ पर बी का उल्टा ये बी आया है, ठीक है, 7 का उल्टा 7, लेकिन यहाँ लाइन सेगमेंट कितने थे, 8 थे। अब यहाँ चेक करेंगे हम कितने होते थे, यहाँ से ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितने आ रहे लाइन सेगमेंट, 9। अब लास्ट वाला चेक करो, हमें 80 आना चाहिए लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। अब बी का उल्टा ये दिख रहा है उल्टा, ठीक है, और 7 का उल्टा ये है 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। मिरर इमेज में इसको ये डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। सो अंडरस्टूड। So in this way we have completed this geometry lesson. In next period we will do revision of this lesson. Okay, so note down this one.